Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 4, Eat the Rainbow, and section 2, Celebrity Chef. Okay, this is your section 2. Sanjeev Kumar is one of the most popular faces on television. He is the only chef in the world to have his own channel. His recipe books are best sellers and have bagged Indian and international awards. His restaurants are considered the best not only in India but abroad also. He also runs a business of world kitchen class kitchen gadgets to empower people, a cause close to his heart. इसमें ये बता रहे हैं कि सेलिब्रिटी शेफ़ है एक संजीव कुमार, वो बहुत ही पॉपुलर फेस है टेलीविज़न पे। ये वर्ल्ड के एक ऐसे शेफ़ है जिनका अपना खुद का एक चैनल है। ठीक है, ये इनकी जो बुक्स होती हैं कुछ बनाने की रेसिपी वगैरह, वो बेस्ट बुक है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। Okay, now come to the chapter. What is your earliest memory of food? When did you develop an interest in cooking? आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है फूड की और आपको कब इंटरेस्ट आया कुकिंग में? Mine is a family of foodies और food lovers and everybody loves cooking. उनकी फैमिली में सभी लोग फूडी थे, सभी लोग खाने के शौकीन थे और सभी को खाना पसंद भी था और सभी लोग को कुकिंग करना भी पसंद था. So, as a kid, I too did basic kitchen chores like shelling peas or chopping vegetables, followed by learning to make a cup of tea. But my clearest and most favorite memory is of making a perfectly round chapati. It was a great achievement and I was really thrilled. इनको किचन में सबसे पहले मटर छीलना और वेजिटेबल काटना आया. इसके बाद इन्होंने सबसे पहले चाय बनाई थी और उसके बाद उनकी क्लियर मेमोरी थी कुछ बनाने की, वो थी चपाती एकदम गोल. ठीक है. हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू डिसाइडेड टू टेक अप कुकिंग एज अ करियर? आपकी फैमिली ने क्या रिएक्ट किया जब आपने कहा कि आप कुकिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं? आई हैव ऑलवेज liked to do something different. My family knows this and has always supported my decisions. So, while everyone was studying medicine or engineering, I decided to become an architect. It was by chance that I applied for hotel management at the Institute of Hotel Management in New Delhi. A friend asked me to do it. It wasn't a planned decision, but definitely a good one. It changed my life. उन्होंने बोला कि वो अपनी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते थे, डिफरेंट करना चाहते थे और उनकी फैमिली हमेशा इस चीज़ के लिए उन्हें सपोर्ट करती थी. इसके बाद उन्होंने एक होटल मैनेजमेंट के लिए डाला, अप्लाई किया और उनका हो गया और ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीज़न था. What was the difference between cooking at home and being a professional hotel management and catering course? द कोर्स इज़ उन्होंने बोला कि क्या डिफरेंस होता है घर में बनाने का और एक प्रोफेशनल होटल में जा कर के बनाने का, क्या डिफरेंस है? द कोर्स इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग अ पर्सन टू बी अ शेफ़. द पैशन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. उन्होंने बोला कि जितने भी कोर्स होते हैं ये सभी पर्सन के अंदर से आते हैं, उन्हें शेफ़ बनाने के लिए आता है, शेफ़ बनाने के लिए किया जाता है. When you study professionally to be a chef, you are taught everything systematically about ingredients, science, art, commerce, the past, present and future of cooking and the cuisine of different regions. उन्होंने बोला कि जितने भी व्यंजनें होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बनाना सिखाया जाता है और आप जब शेफ़ के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ सिखाई जाती है, उसका पहले का बाद का हर चीज़ के बारे में. Finally, it is about the application of this knowledge and skill to different aspects of cooking in a high pressure professional environment. Cooking at home is a more relaxed activity when you learn with the time and experience. उन्होंने कहा आप खुद ही जैसे जैसे बनाने लगते हैं घर में या बाहर भी, तो घर में बनाने से क्या है कि रिलैक्स होकर आप बनाते हैं, लेकिन बाहर में क्या होता है आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि कैसे आप बनाएंगे, क्या करेंगे. ओके, What is important for both, whether you are cooking at home or professionally, is to enjoy the process of cooking and feeding people good food. उन्होंने बोला आप कहीं भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको बस इसको एंजॉय करना है और सोचना है कि आप इंसान को, पर्सन्स को आप अच्छे फूड खिलाएंगे. हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन? व्हाट वाज योर फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस? आपका पहला किचन का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
My journey into the culinary world started with me working as a chef for the IGDC group in India. I was posted at Hotel Ashok वाराणसी। उनका उनकी जर्नी शुरू हुई इस वर्ल्ड में शेफ़ की तरह IGDC ग्रुप से, और उनका जो होटल था वो था अशोक, जो अशोक होटल अशोक, और कहाँ था, वाराणसी में। डिड यू प्लान खाना खजाना द फेमस टीवी शो, हाउ डिड इट हैपन? उन्होंने, क्या आपने खजाना बनाने का पहले से प्लान किया था टीवी शो, या फिर कैसे हुआ ये? टेलीविज़न हैपन ड्यूरिंग माई टेंटोर इन द सेंटोर अ होटल इन मुंबई। उन्होंने कहा टेलीविज़न की शुरुआत यहाँ से हुई। आई वॉज अप्रोच्ड बाय अ रेडियो प्रोड्यूसर फ्रॉम फिजी टू होस्ट अ शो फॉर इंडियाज़ फर्स्ट केबल चैनल। उन्होंने कहा कि इन्हें रेडियो के ये प्रोड्यूसर थे फिजी, इन्होंने होस्ट करने को बोला। देयर वर सेवरल बम्स ऑन दिस रोड बट इवेंचुअली इट लेड टू ग्रेट सक्सेस। उनका बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट इसको एक ग्रेट सक्सेस मिला अंत में। For one, the cookery show was tentatively called Shriman Bawarchi, which I just couldn't relate to. I actually refused to come on board if the name wasn't changed. उन्होंने बोला कि इस नाम को चेंज करिए, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। बिसाइड्स दिस द प्रोडक्शन हाउस इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ होस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी वाइल आई वॉज कुकिंग। दिस अगेन आई फाउंड टू बी अ बिग चेक ऑन माई कुकिंग एंड आई फेल्ट इट स्टॉप्ड मी फ्रॉम कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये खुद ही मतलब ऑडियंस से कनेक्ट करने ये स्टॉप हो जाएगा, ये रुक जाएगा। द प्रोड्यूसर हाइवर परसिस्टेड एंड आई सजेस्टेड द नेम खाना खजाना टू विच दे एग्रीड। उन्होंने फिर अपना नाम सजेस्ट किया कि मैं खाना खजाना इसका नाम रखूँगा, और उसके बाद वो एग्री कर गए। खाना खजाना दस टुक बर्थ इन 1993 एंड वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कुकरी शो ऑन टीवी। खाना खजाना 1993 से स्टार्ट हुआ और आज ये बहुत सक्सेसफुल कुकरी शो है। More than 500 million people in about 167 countries see it. It has run non-stop for more than 15 years. 15 years से ये non-stop चल ही रहा है। खाना खजाना gave me a large chunk of the recognition and love I enjoy today. खाना खजाना की वजह से इनको एक बहुत बड़ा नाम मिला और इनको सब प्यार करने लगे। It helped me get into people's heart and brains and stay there. It was the first time that the concept of celebrity chef or a chef cooking on screen in India came to life, so it will always be special to me and close to my heart. इसकी वजह से वो हर पर्सन के दिल में आए, ब्रेन में आए, इसलिए उन्हें ये शो बहुत पसंद है कि इसके ज़रिए वो सभी से कनेक्ट हो सके। व्हाट इज़ योर फेवरेट कमेंट फ्रॉम योर व्यूवर्स? आपके फेवरेट कमेंट कौन था आपके व्यूवर्स से? डैट दे ट्राइड वन ऑफ माई रेसिपीज़ एंड इट टर्न आउट ग्रेट। जैसे ही वो उनकी रेसिपी बनाते थे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। व्हाट इज़ योर कम्फर्ट फूड, हु मेक्स इट एट होम? आपका कम्फर्ट फूड कौन सा है? ठीक है, इट हैज़ अ राजमा चावल। उनका सबसे कम्फर्ट फूड है राजमा चावल। एवरीबडी इन माई हाउस कैन मेक डिसेंट राजमा चावल बट नथिंग कम्स क्लोज टू द वे माई मदर मेक्स इट। एज द से इन हिंदी, माँ का हाथ का खाना। फूड कुकड बाय योर मदर इज़ ऑलवेज द बेस्ट, इजंट इट? उन्होंने बोला कि मम्मी के हाथ का राजमा चावल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया क्यूजीन, विच क्यूजीन एक्साइट्स यू द मोस्ट? वाई? Regional food, no matter which part of the world I am in. As a part of my job, I travel a lot and have had a good fortune to eat food from across the globe. उन्होंने बोला कि मैंने बहुत जगह घूमा है, बहुत सारे व्यंजन्स खाए हैं, और मैं हर जगह जाता हूँ, लगभग वर्ल्ड में मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। वेर एवर आई गो आई मेक श्योर आई सर्व अ लोकल रीजनल डेलिकेशंस of the place. I have had such great experiences, it would be difficult to pick one among the gems and regional cuisines are. उन्होंने बोला मैं बहुत जगह गया हूँ और उन सब में से कोई एक फूड निकालना, कोई एक जगह निकालना मेरे लिए बहुत टफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। What do you feel about TV cooking contests, especially the ones of the children? उन्होंने बोला कि आपको टीवी शोज़ कंटेस्ट कैसे लगते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए होता है। तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आज जो किड्स होते हैं वो आजकल बहुत टैलेंट होते हैं, उन्हें हर चीज़ में कंपटीशन बहुत पसंद होता है, इसलिए कुकिंग में बच्चों का लाना एक अच्छा है, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकें। ठीक है, उनको ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने एक ग्रेट टाइम बिताया। वॉट वुड यू एडवाइस टूडेज चिल्ड्रन अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स? आप आज के बच्चों को क्या बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे उनकी ईटिंग हैबिट्स से?
तो वो बोलते हैं कि बच्चों को जो है वो जो प्लेट में सर्व किया जाए वो एक रेनबो, मतलब हर कलर की डिशेस होने चाहिए जिसके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, और इस तरह से उनकी हेल्दी ईटिंग की बनेगी, लाइफ में एक अच्छी आदत बन जाएगी। और यही उनका बेस्ट एडवाइस है पेरेंट्स को कि सभी लोग मतलब उनको कलरफुल खाना दिया करें। वॉट वुड यू टेल चिल्ड्रन हु वॉन्ट टू टेक अप होटल मैनेजमेंट और कुकिंग एज अ करियर? उन्होंने कहा आप उस बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो कुकिंग को एज अ करियर ले जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा वर्किंग प्रोफेशनल किचन इज़ नॉट ईजी। उन्होंने कहा प्रोफेशनल किचन में काम करना ईजी नहीं होता है। हाँ, आप उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं अगर आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है। बहुत सारे चैलेंज आपको मिलेंगे, हर सिंगल डे पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे और आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने फेस पे एक स्माइल रखनी पड़ेगी और अपने आप पे एक विश्वास रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।